Hi friends, welcome in Anthronet JRF Academy. Let's solve December 2023 paper with analysis for 2025 December exam oriented. We already discussed 100 of questions from this paper, and let's see the forward next 50 questions. And the next question जो हमारा है 101 क्वेश्चन नंबर MN Srinivas. MN Srinivas argued that insiders are better placed while study a society for following means they are well versed with the language, with have advantage, and insider have home blindness, and with adequate trainings insider overcome the prejudice and biases. Insider can adjust well condition in the field of where outsider feel homesick, and insider have all the resources. So the correct options is they are all versed with the language and thus have an advantage. The correct option is A. And insider home blind list is not correct options. And with adequate training, insider can overcome the prejudice and the biases. This insider can adjust to conditions, field work, where outsider homesick. No. So correct option is A and C. In options, correct option is 1. Let's move on the next question. Next question 102. 102. These days, participatory approach of tribal development are preferred because people participatory approach are tribal development preferred because local people have better knowledge about topographies and resources than outsider. Local people have better knowledge about topographies and resources than outsider, and enabling and empowering the local populations. It is mandatory. It is a mandatory to international conventions and funding agencies that prescribe the participatory approaches and will be minimize the administrative expenditure. So correct option is A and B. So A and B options 4. The correct option is 4. Let's move on the next question. Question number 103. The scholars who are associated with concept of the general and specific evolutions. Associated with concept of the general and specific evolutions was L.H. Morgan, Tyler, Sahlin, Services, and Beethoven. Sahlin and Services are associated with general and specific evolution. C and D. Correct option is 2. Let's move on the next question. Question number 104. The most important dimension of human development HDI index are growth rate of economy, health expectancy, quality of living, gross domestic product, identity crystallizations. And the correct option is health, quality living, and life expectancy. B and C. Correct option is 3. Let's move on the next question. Next question. Question number 105. Question number 105 is identify the writing of N.K. Bose. Nirmal Kumar Bose. Identify the writing of Nirmal Kumar Bose. First one is Cultural Contour of Tribal Bihar. Second, the Acculturation of Bhumes. Next, Cultural Zone of India. The Hindu Method of Tribal Absorptions. The caste and nations. So, correct option is C and D. Correct option is C and D. C and D. Correct option is 3. Let's analyze these questions because it's a very important and most of the famous anthropologists associated with these questions. First one is Cultural Contour of Tribal Bihar. Surajit Sinha. Surajit Sinha and associated with LP Vidyarthi. The correct option is Surajit Sinha. And the acculturation of Bhumis. भूमिज ट्राइब की स्टडी किसने की थी? एस 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 से नाम है उनका. चलिए आगे याद आएगा तो बता दूंगी. याद है आ नहीं रहा है टंग पे. कल्चरल जोन ऑफ इंडिया and the Hindu method of tribal absorptions. This is related to Nirmal Kumar Bose. Caste, tribe, caste and nations. Tribe, caste and nation is associated with F.G. Bailey. F.G. Bailey.
1960, ये इनकी थर्ड बुक थी। 1960 एफ जी बेली। सूरजीत सिन्हा, नो, अच्छा ये थोड़ा सा ना ये हो गया, देखिए ये सूरजीत सिन्हा ने लिखी थी, मैं कह रही हूँ कहीं तो मुझे याद आ रहा है, सूरजीत सिन्हा ने ये वाली बुक लिखी थी। और कल्चरल कंटूर ऑफ ट्राइबल बिहार जो थी वो सच्चिदानंद सिन्हा की थी। सच्चिदानंदा सिन्हा, सच्चिदानंदा सिन्हा, और इनसे एसोसिएटेड थे एलपी विद्यार्थी। कल्चरल कंटूर ऑफ ट्राइबल बिहार, एलपी विद्यार्थी ने इसमें बहुत काम किया था। सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन इज सी एंड डी, कल्चरल जोन ऑफ इंडिया एंड हिंदू मैटर ऑफ ट्राइबल ऑब्जर्वेशंस 1941 के आसपास की किताब थी ये, इनकी बहुत फेमस किताब थी। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द बुक रिटन बाय लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस के द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं उनके बारे में बताना है। लेवी स्ट्रॉस, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, सोशल स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द सेंटिमेंट। द करेक्ट ऑप्शन इज लेवी स्ट्रॉस की सबसे पहली किताब जो थी वो थी द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप 1949 की, इतना तो सबको पता होता है। सेकंड जो इनकी किताब थी, एक और किताब थी उसके बाद इनकी थर्ड किताब थी स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये थी 1963 की, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड डी, बी एंड डी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज 4, बी एंड डी। And let's see the analysis of these questions. The theory of social structure. Theory of social structure was given by in 1959 में दी थी, किसने दिया था? निदम, निदम, निदम। सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर्स, ये बहुत फेमस किताब थी। सोशल स्ट्रक्चर शायद ये ब्राउन की किताब थी, ब्राउन की किताब थी सोशल स्ट्रक्चर। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप एंड द स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। नहीं, सोशल स्ट्रक्चर ना रेमन फर्थ की किताब थी, सॉरी, रेमन फर्थ की किताब थी। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एथिक्स सजेस्टेड फॉर anthropologists include, first is inform the consent of the participant in research is essential, national interest gets priority, protection of interest of the funding agency, protection of the privacy behind the participant, research objectives should not be revealed the participant। तो ये तो होगा ही नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी एंड डिग्निटी ऑफ पार्टिसिपेंट, यस डी सही है। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द फंडिंग एजेंसी, सी सही नहीं है, ना तो सी सही है ना ई सही है, सी और ई नहीं है तो दो ऑप्शंस को निकाल देते हैं। और हमारा ए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट इन रिसर्च इसेंशियल, ए ऑप्शन हमारा सही है, ए ऑप्शन सही है। नेशनल इंटरेस्ट गेस्ट प्रायोरिटी, ए ऑप्शन सही है। बी, सी, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेटी एंड डिग्निटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, इन्फॉर्म कंसेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट इन रिसर्च इज इसेंशियल, इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ पार्टिसिपेंट, हाँ इन्फॉर्म्ड किया जाता है उनको पार्टिसिपेट करने से पहले। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 107, sorry 108, who among the following work on the Jajmania system in India, Jajmania system in India, and AC Mayer, Peacock, Bedelman, Harold Gow, and Emile Sennett। The correct option is Thomas O. Bedelman and Harold Gow। Correct option is C and D, 3। And Peacock was, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था जजमानिया सिस्टम को, और इसके साथ ही जजमानिया सिस्टम की स्टडी विलियम वाइजलर ने स्टार्ट की थी 1936 में, करीमपुर विलेज ऑफ यूपी, करीमपुर विलेज ऑफ यूपी। और इन्होंने लिखी थी द मड वॉल इनकी किताब थी, द मड वॉल। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी एंड डी। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, the anthropologists who use comparative method are
जॉर्ज मर्डॉक, हेमेंड्रॉफ, मेलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन एंड एयरलिच। करेक्ट ऑप्शन इज मर्डॉक ने नहीं किया था एंड डी ऑप्शन सही है इसका, डी, बी एंड डी। करेक्ट ऑप्शन इज 3, बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस। Let's move on the next questions. 110, question number 110. The advantage of mail questionnaires are, रिसर्च मेथड में दो हमारे पास टूल होते हैं डेटा कलेक्शंस के लिए। फर्स्ट होता है क्वेश्चनरी और सेकंड होता है शेड्यूल। सो इट सेव द टाइम ऑफ रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी, यस। आंसर कैन बी चेक्ड एंड वेरीफाई, यही तो नहीं पता होता कि आंसर कौन कर रहा है, ये पता नहीं होता उसमें। It save the money as payment to investigations can avoid it. It is a more scientific and objective, no. It can be know who responds the questionnaire, no. पता ही नहीं चलता किसने रिस्पॉन्स किया। जैसे ईमेल पे जो हम गूगल फॉर्म बना के भेजते हैं, गूगल फॉर्म, वो एक टाइप्स का जो होता है वो क्वेश्चनायर होता है। क्वेश्चनायर हमें कैसे पता चलेगा कौन फिल करके भेज रहा है, कोई भी भेज सकता है भाई बहन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए एंड सी। करेक्ट ऑप्शन इज 1. So let's move on the next question. Question number is 111. The Indian Neolithic cultural characteristics are known. बेसिकली हमें नियोलिथिक साइट के बारे में बताना है कि इसमें कौन सा नियोलिथिक साइट है। भीमबेटका एंड बिरभानपुर, ईमानगांव एंड बिलास सुरगम, संगनकालू एंड सरतारू, ईरान एंड चंदौली, गुडियम एंड नवेशा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। सॉरी, बी कैसे हो सकता है, बी नहीं होगा। संगनकालू और चंदौली, सी एंड डी। करेक्ट ऑप्शन इज 2। देखिए भीमबेटका बिरभानपुर, भीमबेटका तो हमारा वैसे भी नहीं होगा नियोलिथिक साइट, ये मेसोलिथिक साइट है। ईमानगांव एंड बिलासरगम, बिलासरगम हमारी अपर पैलियोलिथिक साइट है, अपर पैलियोलिथिक साइट है। संगरकालू एंड सरतारू, संगरकालू कर्नाटका की है, सरतालू हमारी नॉर्थ ईस्ट की साइट है। ईरान एंड चंदौली, ईरान मध्य प्रदेश की साइड है, चंदौली भी हमारी, चंदौली महाराष्ट्र की साइड है। तो इस तरीके से ये भी हमारी नियोलिथिक साइट हो जाएंगी। और गैडियम एंड नवेशा, नवेशा चलो नवेशा को मान लो कि मान कह लो ये है ही नियोलिथिक साइट, लेकिन ये गुडियम जो है, गुडियम हमारी लोअर पैलियोलिथिक साइट है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 2. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपर पैलियोलिथिक ट्रेडिशन ऑफ यूरोप वर। अब हम बताने इसमें से कौन सा अपर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक है। बहुत इजी ट्रिक बताई थी मैंने अपर पैलियोलिथिक के लिए, क्या थी, प्रियंका चोपड़ा, पीसी हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। जी या जोन्स, जे से जोन्स बना सकते हो। पी से पेरिगोरियन, सी से कैटरपेरियन, गी से ग्रेविटेरियन, ग्रेविटेरियन। उसके बाद सोलुटेरियन आता है, और इग्निशियंस, सोलुटेरियन एंड मैगडेलिनियन, मैगडेलिनियन। प्रियंका चोपड़ा जी असम, असम प्रियंका चोपड़ा जी असम। पी से पेरिगोरियन, कैटरपेरियन, ग्रेविटेरियन, और इग्निशियंस, एस से सोलुटेरियन एंड एम से मैगडेलिनियन। So let's see upper Mousterian culture, लोअर मोस्टेरियन कल्चर हमारा किस में आता है, पहले होता है लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, ये मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर होता है, मोस्टेरियन नहीं होगा। टर्डेनोशियन एंड चैटरपेरेनियन, टर्डेनोशियन एंड चैटरपेरेनियन। चलो चैटरपेरेनियन को मान लो कि ये है, मान लो क्या है ही, टर्डेनोशियंस क्यों नहीं होगा, चलिए देखते हैं। जो मेसोलिथिक कल्चर्स होते हैं, मेसोलिथिक में हमने क्या याद किया था, ATM, ATM, के और एन। ए से एजिलियन, टी से टर्डेनोशियंस, एन से मैग्लेमोशियंस, के से किचन मिडल, एन से नतूफियन। सो टर्डेमोशियंस हमारा मेसोलिथिक है, इसको भी निकाल देंगे। एजिलियन एंड ऑरिग्नेशियंस, एजिलियन एंड ऑरिग्नेशियंस ये भी नहीं होगा, इसमें केवल ऑरिग्नेशियंस है। ग्रेविटियन एंड सोलुटेरियन, सो ये हो जाएगा। देखिए इसमें ई ऑप्शन सही है। एग्जाम में यूजीसी नेट जो था वो हमारा सी और ई के साथ गया था, ठीक है, सी और ई उसने करेक्ट ऑप्शन माना था। लेकिन अगर अपर पैलियोलिथिक में जाए तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है।
टर्डेनोशियन टर्डेनोशियन और चैटरपेरेनियन भी सही नहीं है, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। टर्डेनोशियंस कैसे हो सकता है, टर्डेनोशियंस तो हमारा इसमें है, मेजोलिथिक कल्चर होता है, तो ये ऑप्शंस इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया है उन लोगों ने, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन बस ये ग्रेविटियन और सलूटेरियन कल्चर वाला सही है। तो इसके बेसिस पे जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया था वो सी और ई को अटेम्प्ट किया था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कैरेक्टराइज बाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसके कैरेक्टर्स बताने हैं। टाउन प्लानिंग एंड ट्रेड, देखिए हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो होती है उसमें बहुत अच्छी टाउन प्लानिंग थी, इसीलिए उसको तो सिविलाइज बोला जाता है। टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स, टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स के बारे में मिलता तो है लेकिन आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया था, डेशिफर नहीं थे, इसीलिए हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। टेराकोटाज एंड मेटल ऑब्जेक्ट, मेटल ऑब्जेक्ट पाए गए थे। एक्सपेंशन ऑफ सिविलाइजेशन ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये भी सही है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ द आयरन, भाई आयरन यूज तो हमारी आईवीसी में थी ही नहीं ना, ये तो बाद में आती है मेगालिथिक कल्चर में, सबसे पहले हम ई को ही एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। और ए हमारा सही है, तो ए हमारा सही है, बी को एलिमिनेट कर देंगे, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए और सी आ जाएगा। इवन दो ए और सी सही है एंड एक्सपेंशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, डी भी ऑप्शन सही है, लेकिन ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है जिसमें ए, सी और डी हो, so that's why we choosing correct option is 4. Let's move on the next questions. Question number 114. Question number 114. Fabrication of the L'Oreal leaf point involve baking, flaking, grinding, retouching and polishing. L'Oreal leaf point involve fabrications, इसमें हमारा हो जाता है पेकिंग और रिटचिंग। ए एंड डी ऑप्शन है कहीं, यस ए एंड डी, करेक्ट ऑप्शन इज 1. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 115. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोटोपिक डेटिंग मेथड, देखिए हमारे सिलेबस में डेटिंग मेथड दिए गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल डेटिंग मेथड से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आइसोटोप डेटिंग मेथड के बारे में हमें बताना है, कौन सी आइसोटोप डेटिंग मेथड होती है। देखिए आर्कियोमैग्नेटिक डेटिंग, पोटेशियम आर्गन डेटिंग, डेंडोक्रोनोलॉजी डेटिंग, फ्यूजन ट्रैक डेटिंग, थर्मोलुमिनेसेंस डेटिंग, ठीक है। सबसे पहला तो हमें पता है कि पोटेशियम आर्गन डेटिंग ये होता है, इसमें आर्गन होता है, पोटेशियम आर्गन डेटिंग सही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। फ्यूजन ट्रैक डेटिंग डी तो होगा ही नहीं, तो डी को भी एलिमिनेट करेंगे तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, ए बी सी। अब हमारे पास सी और डी, सॉरी फ्यूजन ट्रैक डेटिंग हमारा आइसोटोप डेटिंग होता है, नाम सुनने में बहुत अजीब लगता है, और फ्यूजन ट्रैक डेटिंग हमारा एब्सोल्यूट डेटिंग है। आइसोटोप डेटिंग, आइसोटोप डेटिंग, आइसोटोप डेटिंग तो हमारा फ्यूजन ट्रैक डेटिंग हो जाएगा, बी और डी, करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड डी। आइसोटोप डेटिंग देखिए पोटेशियम आर्गन डेटिंग, फ्यूजन ट्रैक डेटिंग, डेंडोक्रोनोलॉजी डेटिंग, ये डेटिंग जो है हमारी ये एब्सोल्यूट डेटिंग है। आर्कियोमैग्नेटिक डेटिंग भी एब्सोल्यूट डेटिंग है। थर्मोलुमिनेसेंस भी हमारी, ये सारी एब्सोल्यूट डेटिंग का पार्ट है। अब टू टाइप्स की डेटिंग होती है, एब्सोल्यूट डेटिंग और रिलेटिव डेटिंग। रिलेटिव डेटिंग्स, एब्सोल्यूट डेटिंग्स एंड इससे क्वेश्चंस आता है, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिएगा। एब्सोल्यूट डेटिंग एंड रिलेटिव डेटिंग्स, कुछ बताने वाली थी भूल गई, हाँ यहाँ पे देखिए जो आर्गन डेटिंग्स की हाफ लाइफ पीरियड होती है 1.3 ± 40, ये इसका टाइम पीरियड होता है, हाफ पोटेशियम डेटिंग का हाफ लाइफ पीरियड। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस वी हैव टू मैच लिस्ट 1 to लिस्ट 2, हमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में हमारा हेड सर्कमफेरेंसेस, वेट फॉर स्टेचर्स, शोल्डर हिप रेशियो एंड BMI फॉर एज। BMI फॉर एज ये हो जाएगा हमारा प्री एंड एडोलेसेंट चिल्ड्रेन, इसको मैच करेंगे प्री एंड एडोलेसेंट चिल्ड्रेन। दूसरा है हमारा हेड सर्कमफ्रेंसेस, हेड सर्कमफ्रेंसेस जो होता है वो हमारा प्री स्कूल चिल्ड्रेन में होता है। फिर है वेट फॉर स्टेचर्स, ये प्री एडोलेसेंट में होता है, और हिप रेशियो, शोल्डर एंड हिप रेशियो हम एडोलेसेंट में काउंट करते हैं।
देखिए BMI को जो कैलकुलेट किया जाता है, बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स, बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स, इसको कैलकुलेट किया जाता है केजी वेट अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर में। इसको इसमें कैलकुलेट किया जाता है केजी एंड मीटर स्क्वायर। जो नॉर्मल BMI होता है वो हमारा 18.5 से लेके 24.9 होता है। नॉर्मल इसको BMI बोलते हैं, एक बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। और जो उसके बाद जो होता है हमारे सेकेंड में क्लास ओबेसिटी जो होता है वो 25 टू 29 होता है। ये फर्स्ट क्लास ओबेसिटीज होती है, फर्स्ट क्लास ओबेसिटी होती है। सेकेंड क्लास ओबेसिटी में बात करेंगे 30 टू 39.9 BMI जो होता है ये हमारा, ये सेकेंड क्लास हाईली ओबेसिटीज होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। तो इस तरीके से हम BMI यानी बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। BMI को हम चिल्ड्रन और एडोलेसेंट में कैलकुलेट करते हैं। हिट सर्कमफेरेंसेस का मतलब होता है, जब आपने देखा ना छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो जो अर्ली स्कूल्स होते हैं किंडरगार्टन वाले, तो उनमें उनका हेड देखा जाता है कि कहीं हेड बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा तो नहीं है। जब जरूरत से ज़्यादा बड़ा होता है तो वो डिजीज़ कॉज करता है, या छोटा होता है तो वो डिजीज़ कॉज करता है। इसीलिए हम हेड सर्कमफेरेंसेस को प्री स्कूल चिल्ड्रन में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वेट फॉर द स्टेचर। वेट फॉर द स्टेचर जो है प्री एडोलेसेंट चिल्ड्रन में बहुत तेज़ी से हाइट उनकी बढ़ती है। शोल्डर हिप रेशियो तो वही बताइए, एडोलेसेंट जैसे जैसे बच्चे एडोलेसेंट होना शुरू करते हैं 12 या 13 to 19 एडोलेसेंट की एज होती है, उसमें वो अपने मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, जिम वगैरह में जाके अपना शोल्डर्स वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने का ट्राई करते हैं। बेसिकली उसी टाइम पे उनका जो शोल्डर और हिप रेशियो, हिप बोन्स होती हैं या हिप मसल्स होती हैं वो इम्प्रूव करती हैं। तो उस समय पे हम शोल्डर और हिप रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट का है सेकंड, सेकंड का है थर्ड, फर्स्ट का है सेकंड, सेकंड का है थर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 117. Oh, very great. कार्ल एंड स्टीनर, HBS हल्डाने, T कोरी एंड कार्ल F कोरी, ये कपल थे। EB फोर्ट एंड GBS हल्डाने, हेल्डन बोलते हैं, हल्डाने में जो भी आप बोल सकते हो, मतलब मेरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऐसे हो गया, हेल्डन होता है। देखिए कार्ल एंड स्टीनर, डिस्कवरी ऑफ AB ओ ब्लड ग्रुप 1901। ओके, सेकंड ये देखिए फोर्ट का मुझे पता है, EB फोर्ट और JBS हेल्डन जो थे उन्होंने इनबॉर्न डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक डिफेक्ट इन इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म पे काम किया था। ओके, एंड सेकंड जो है हमारा GBS हेल्डन है, GBS हेल्डन है, इनका हो जाएगा फर्स्ट टू स्टडी लिंकेज क्वांटिटेटिवली इन ह्यूमन बीइंग, बी का हो जाएगा 1। हेल्डन ने सबसे पहले लिंकेज को क्वांटिटेटिवली ह्यूमन बीइंग में स्टडी किया था, क्वांटिटेटिवली ह्यूमन बीइंग में स्टडी किया था हेल्डन ने। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। एंड ग्रेटली T कोरी एंड F कोरी, T कोरी और F कोरी एक ही ऑप्शन हमारे पास रहता है। रोल ऑफ द जेनेटिक डिजीज इन द शेपिंग द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। कोरी यानी इन दोनों पति पत्नी ने स्टडी की थी, T कोरी और F कोरी ने स्टडी की थी जेनेटिक डिजीज शेपिंग द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118। ओके, वी हैव टू अगेन मैच लिस्ट 1 to लिस्ट 2। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। अभी हमने जो इससे पहले की जो वीडियोस बनाई है हमने क्लासिफिकेशन, ज़्यादा नहीं है उसमें, 2 वीडियो ऐसी हैं, 2 से 3 वीडियो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30-30 मिनट की होंगी या 40 मिनट की होंगी। उसमें आप देखोगे मैंने पूरा क्लासिफिकेशन बिट ट्रिक के साथ पढ़ा दिया है। तो अगर आप याद कर पाओ ना बहुत ईजी हो जाएगा और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। देखिए हॉलर मंकी का मैंने बताया था, जैसे ही ओ आ गया तो वो समझ जाएंगे कि ये आओ एलवोट्टा से है। आलू से मैंने बताया था, ओ आ गया तो आलू, यानी 20 का हो जाएगा 1। बी का 1 है किसी में, 2 में है। चलिए अब है टैमारिन, टैमारिन का हो जाएगा सेगुनस, ये बेसिकली जीनस है, इनके जीनस। टैमारिन का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4। देखिए ए का 4 भी है, थर्ड वाले ऑप्शन में ए का 4 है, बी का 1 है। स्पाइडर मंकी जो हमारे एटलीज से बिलोंग करते हैं, ये
एटलीस से बबून, और पैबियो की जो जीनस होते हैं वो पैपियो होता है, बबून का जो जीनस होता है वो हमारा पैपियो होता है। पैपियो यानी डी का हो जाएगा हमारा थर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, देखिए कितना इजी है, अगर ट्रिक पता है तो आराम से कर ले जाएंगे, ज़्यादा रटने की भी आवश्यकता नहीं है। टैमरिंड का हो जाएगा, टैमरिंड का जीनस हो जाएगा हमारा सैगोनस। हाउलर मंकी आलू हो जाता है, एचओ और एलो, आलूअट्टा यानी आलू। सेकंड हो जाता है स्पाइडर मंकी, एटलीस। बैबून का तो सबको पता है कि पैपियो होता है, बैबून का जीनस पैपियो होता है, बैबून का जीनस पैपियो होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Oh, nice, great. Again, very interesting questions. We have to match program and year of the commencement. Program and year of the commencement. प्रोग्राम हमारे पास क्या है? इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन डाइवर्सिटी जीनोम प्रोजेक्ट। देखिए सबसे पहले हमें तो मैप प्रोग्राम पता ही होगा, ये तो हम सब लोग पढ़ते हैं कि मैप प्रोग्राम कब आया था। 1971 का मैप प्रोग्राम है। उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी हम पढ़ते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये हमारा 1991 का प्रोग्राम, सॉरी 1990 का प्रोग्राम है, 1990 से 2003 तक चला था। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम डाइवर्सिटी प्रोजेक्ट 1991 में आया था, ठीक है। और इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम जो है हमारा ये 1964 में। देखिए ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बस इसकी क्रोनोलॉजी बदल दी जाती है। जैसे कि इसमें पूछ दिया जाएगा कि इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट कब आया था। ये सबसे रिसेंट प्रोजेक्ट है, 2020 का भी पूछा गया था। इससे पहले वाला जून वाला पेपर देखेंगे तो उसमें मैंने एनालिसिस करा चुकी है। हाफ मैन प्रोजेक्ट कब आया था? हाफ मैन प्रोजेक्ट ये 2008 का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही क्रोनोलॉजी अरेंज करने के लिए पूछ देते हैं एग्जाम में। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए का हो गया थर्ड, ए का थर्ड दो जगह है तो हम इनको एलिमिनेट कर देते हैं। बी का हो जाएगा 1, बी का 1 दो जगह है। सी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 4, करेक्ट ऑप्शन इज 4। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100। अब हम देखते हैं 119 क्वेश्चन नंबर है हमारे 119। द हिस्ट्री ऑफ एथनोलॉजिकल थ्योरी, अगेन वी हैव टू मैच लिस्ट 1 to लिस्ट 2। द हिस्ट्री ऑफ एथनोलॉजिकल थ्योरी, मैजिक साइंस, रिलीजन एंड अदर इश्यू, द नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटीज, द किनशिप एंड द सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ एथनोलॉजिकल थ्योरी ये आर लुइस की किताब थी। मैजिक, रिलीजन, साइंस एंड द अदर इश्यू ये हमारी मेलिनोस्की की किताब थी। द नेचुरल साइंस एंड सोसाइटी एयर रेडक्लिफ ब्राउन, और देखिए मेलिनोस्की ने जो स्टडी की थी और एयर रेडक्लिफ ब्राउन ने जो स्टडी की थी ये लगभग कंपैरेटिव थी। यानी मेलिनोस्की जो ने जो स्टडी की थी उन्होंने मतलब पर्टिकुलर स्टडी की थी, लेकिन एयर रेडक्लिफ ब्राउन ने जो स्टडी की थी वो सोसाइटी की स्टडी की थी। और उनके अकॉर्डिंग जो मेलिनोस्की के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी होती है वो काफ़ी साइंटिफिक होती है, रूल रेगुलेशंस बाउंड होती है। लेकिन एयर रेडक्लिफ ब्राउन ने जो सोसाइटी की स्टडी की थी, जैसे कि उन्होंने अंडमान आइसलैंडर की स्टडी की थी 1922 में, और उसमें उन्होंने बताया था कि सोसाइटी जो होती है वो नेचुरल साइंस के बेसिस पे वर्क करती है, उसका एक अपना पैटर्न होता है, उसका कोई लॉ नहीं होता। इसीलिए उन्हें जो अंडमान आइसलैंडर थे उन्होंने बताया था कि वो रूल और नॉर्म्स लेस सोसाइटीज़ होती हैं। तो यहाँ से हमारा नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी एयर रेडक्लिफ ब्राउन हो जाएगा। किनशिप एंड सोशल ऑर्डर मेयर फोर्टिस का किनशिप पे बहुत ज़्यादा वर्क है, तो यहाँ से हम बहुत ईजी वे में मैच कर सकते हैं। पहला हो जाएगा हमारा किनशिप एंड सोशल ऑर्डर को मैच करेंगे, मेयर फोर्टिस थे। मेयर फोर्टिस की किताब थी इसके साथ इन्होंने किताब लिखी द एलिमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इनकी फेमस किताब है, एलिमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। लगभग ये 1957 की इनकी बुक थी। और इनकी पहली जो किताब थी इन्होंने लिखी थी वी द टिकोपिया, ये इनकी किताब थी 1930, ये पहली बुक थी इनकी 1937 की वी द टिकोपिया,
ठीक है। लोइस, आर लोइस की तो पता ही है, इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ एथनोलॉजिकल थ्योरी लिखी थी। और मेलिनोस्की की किताब मैजिक, साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसे, इनकी किताब का एक बार क्रोनोलॉजी देख लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। कोरल गार्डन एंड मैजिक एंड ये सारी किताबें, कोरल गार्डन एंड मैजिक भी फेमस है, इन्होंने बहुत काम किया था मैजिक एंड साइंस पे। फिर होता है नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी। देखिए ये रेडक्लिफ ब्राउन की किताब है, जिसमें इन्होंने स्टडी की थी अंडमान आइसलैंड 1922। कभी कभी बोलने में इधर उधर हो जाता है, पर ये याद रखेंगे। सो यहाँ से हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2, ए का 2 देखिए एक ही में है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 120। देखिए आ गया ना, भूमेज ट्राइब। भूमेज ट्राइब अभी हमने स्टार्टिंग में इसकी किताब, इनकी किताब को देखा था, सुरजीत सिन्हा की किताब की। खोंड, कोटा, भूमेज एंड भूतिया। देखिए बहुत अच्छी किताब है ये। देखिए सबसे पहले हमें जो याद है हम उसको मैच कर देते हैं, एग्जाम का यही रूल होता है। भूमिज को हमने मैच कर दिया किससे? सुरजीत सिन्हा से। सुरजीत सिन्हा, सुरजीत सिन्हा ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, सुरजीत सिन्हा का कॉन्सेप्ट था पीजेंट एंड अर्बन कंटिन्यूम का कॉन्सेप्ट दिया था, उसी को रेडक्लिफ ब्राउन ने यूज करके एक कॉन्सेप्ट दिया था, ट्राइब, कास्ट एंड कंटिन्यूम का कॉन्सेप्ट दिया था सुरजीत सिन्हा ने। और इसी का यूज करके रेडक्लिफ आर ब्राउन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो अर्बन एंड पीजेंट कंटिन्यूम का कॉन्सेप्ट दिया था। और बाद में उसी से इंस्पायर होके जो मैकिन मैरियट थे, उन्होंने लिटिल ट्रेडिशन, ये पैराक्लाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। और उन्होंने जो उनके टीचर थे, रेडक्लिफ ब्राउन के जो टीचर थे, उनके लिटिल ट्रेडिशन, रेडक्लिफ ब्राउन जो टीचर थे, उन रेडक्लिफ ब्राउन का कॉन्सेप्ट जो था लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, उसी का यूज़ कर लिया था मैकिन मैरियट ने। और मैकिन मैरियट ने उनका कॉन्सेप्ट यूज़ करके यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैराक्लाइजेशन दिया था। तो ये लोग आपस में रिलेटेड हैं। तो सी का हो गया 1, सी का 1। और कोंड ट्राइब की देखिए, कोंड ट्राइब की स्टडी जो की थी वो एफ.जी. वेली ने की थी। कोंड ट्राइब की देखिए, एफ.जी. वेली का किस्सा बहुत पुराना है। एफ.जी. वेली ने क्या किया था, कोंड ट्राइब की स्टडी की। एक महिला थी जिनका नाम था कोसी, इससे इन्होंने मैरिज की थी, इससे इनका विवाह हुआ था। और इसी में उन्होंने स्टडी की थी आइसोलेशन अप्रोच की। नहीं ये नहीं है, सॉरी ये अलग है। लेकिन इनकी कोसी ट्राइब से शादी हुई थी। और एफ.जी. वेली ने जो कॉन्सेप्ट दिया था और ट्राइब, कास्ट एंड नेशंस का, ट्राइब, कास्ट एंड नेशन का कॉन्सेप्ट दिया था 1960 में। ये वाला तो वेरी रेलेवेंट का कॉन्सेप्ट है, ये नहीं होगा, ये अलग है। कोंड ट्राइब की एक महिला से कोशिश है, इन्होंने विवाह किया था और उसी पे इन्होंने ट्राइब, कास्ट एंड नेशंस की बुक को लिखा था। फिर आता है हमारा पहला हो गया 2। अब देखिए कोटा ट्राइब की मेंडलबूम ने स्टडी की थी, मेंडलबूम ने। उसके बाद आता है हमारा भूतिया, रामप्रीत श्रीवास्तव, भूतिया ट्राइब की स्टडी। करेक्ट ऑप्शन इज 3। हाँ, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। Next question is 122. Basic personality. Again, we have to match list 1 to list 2. Basic personality of culture, social organization of tradition, evolution of religions, and ethnic group of the boundaries. देखिए ethnic groups and boundaries. एक हमारे यूनिट 8 है, यूनिट 8, उसमें एक टॉपिक मेंशन है, सबसे लास्ट टॉपिक है एथनिसिटी। और इसमें 3 लोग को हमारे यूजीसी नेट ने मेंशन किया है। पहले जो है वो है बार्थ, ऐसे ही लिखा हुआ है बार्थ। दूसरे हमारे जेफरी। सिलेबस एक बार देखेंगे ना क्लियर हो जाएगा। 5-6 क्वेश्चन तो आपको सिलेबस से ही मिल जाएंगे एग्जामिनेशन में, अगर अच्छे से सिलेबस। और लास्ट है हमारे वेबर।
3 लोगों को मेंशन किया है। इसके अलावा और भी लोग हैं जिनको एग्जाम में पूछा है, जैसे कि अबनेर कोहेन को पूछा है। अपने हौसा माइग्रेंट की स्टडी की थी इन्होंने नाइजीरिया में। उसके बाद पूछा है बैंक को, जिन्होंने एथनिसिटी की स्टडी की थी। उसके बाद यांग को पूछा है, इन्होंने भी एथनिसिटी की स्टडी की थी। ठीक है, ये फेमस है एथनिसिटी की स्टडी के लिए, ये पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो बार्थ यानी फेडरिक बार्थ ने किसकी स्टडी की थी? फेडरिक बार्थ की जो स्टडी है ना वो बहुत फेमस है। कल ही मैंने किसी को पढ़ाई थी फेडरिक बार्थ की स्टडी। पॉलिटिकल लीडरशिप अमंग स्वार्थ पठान, देखिए इनकी किताब है पॉलिटिकल लीडरशिप अमंग स्वार्थ पठान कहाँ पे? वेस्टर्न स्वार्थ पठान की स्टडी की थी। देखिए ये 1959 की स्टडी है, और कोहेन की जो स्टडी है वो 1969 की स्टडी है, हौसा माइग्रेंट इन नाइजीरिया योरुबा। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्रोनोलॉजी पूछ देता है। तो पहले इनकी स्टडी आती है, फिर 10 साल बाद इनकी। एक बार पूछा था क्रोनोलॉजी अभी रिसेंट के पेपर में ही। ठीक है, तो यहाँ से ये सब याद रखने हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एथनिक ग्रुप एंड बाउंड्रीज को किससे मैच करेंगे? फेडरिक बार्थ से। पहला मैच हो गया। देखिए अगर इतना भी आता है ना तो हम 2 ऑप्शन को आराम से एलिमिनेट कर देंगे। फिर है हमारा, ये तो बहुत ही फेमस है, बेसिक पर्सनैलिटी एंड स्ट्रक्चर्स, किसको नहीं आता होगा। अब्राहम कार्डिनल हमारे पर्सनैलिटी स्कूल से थे, तो ए का हो गया हमारा 4 आंसर आ गया हमारा। देखिए ए का 4 आंसर आ गया। तो ए का 4 बी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडिशंस, बी का है 3 क्यों होगा? रेडफिल्ड, अभी मैंने बताया कि उन्होंने, जो रॉबर्ट रेडफिल्ड थे, उन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी की थी। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी यानी सोसाइटी की स्टडी की थी। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच से थे, ये कहते थे कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म के को रन करने के लिए उसके सारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं, ऐसे ही सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। तो इस तरीके से सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन इनका हो जाएगा। और इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन, जेम्स फ्रेजर की जो स्टडी थी वो रिलीजन पे बहुत ज़्यादा इन्होंने स्टडी की थी, तो जेम्स फ्रेजर ये हो जाएगा सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, बी का हो गया 3, सी का हो गया 1 और डी का हो गया, सॉरी सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सिलेबस को अच्छे तरीके से देख के जाइएगा ना, ये मेरी गारंटी है 4 से 5 क्वेश्चन आपको आराम से सिलेबस में मिलेंगे। 10 मार्क्स आप सिलेबस से लेके जाइएगा। स्पेशली एक तो जो क्रोनोलॉजी वाली हमारी यूनिट है 6 और 5th और 6, उसको अच्छे से देख लीजिएगा कौन सा क्या किस में आता है। और फिर हमारी 7th यूनिट की जो क्रोनोलॉजी है उसको, ठीक है, इतना ज़्यादा लेक्चर नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी एग्ज़ाम पास में है। देखिए अब फिर से अगेन हमें लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को हमें मैच करना है। पहले है स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन ट्राइबल एरियाज, स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन ट्राइबल एरिया। देखिए इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ट्राइबल एरिया, जो हमारे एलपी विद्यार्थी थे ने उन्होंने ट्राइबल एरिया पे बहुत काम किया था। कल्चरल कंटूर ऑफ ट्राइबल पे भी इन्होंने ही काम किया था। ठीक है, सचितानंद सिन्हा के साथ साथ अभी जो हमने स्टार्टिंग में बुक देखी थी उस पर एलपी विद्यार्थी का काम था। स्टडी ऑफ ट्राइबल मूवमेंट पे के एस सिंह ने काम किया था। एक किताब आती है सोशल मूवमेंट इन ट्राइबल, उसी को 2 लोगों ने, के एस सिंह और के एस माथुर, 2 लोगों ने इसको क्या किया था, अपडेट किया था, मतलब एडिट किया था। तो उसमें स्टडी ऑफ ट्राइबल मूवमेंट जो है ये इनकी के एस सिंह की स्टडी है। स्टडी ऑफ पॉलिनेटरी सबको पता ही होगा, डीएन मजूमदार की किताब है। और स्टडी ऑफ कास्ट होमो हायर्स की जो किताब थी उसी में लुइस डुमोंट ने इसकी स्टडी की थी, स्टडी ऑफ कास्ट की। सो डी का हो गया 1। देखिए अगर आपको डी का 1 भी पता है 2 एलिमिनेट हो गए। ए का पता है 3, तो आप आराम से ऑप्शन, सॉरी दोनों में ही ए का 3 है। देखते हैं बी का हो जाएगा 4। सो कर देखिए यहाँ पे गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इज़ 4। एक बार मैं ये ना आपको बताऊंगी कि एस माथुर वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी नहीं,
एग्ज़ाम के लास्ट में या कभी किसी और क्लास में बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा भी गया। सॉरी, मैं तो भूल ही गई। ठीक है, तो ये हम केएस माथुर यानी ट्राइबल मूवमेंट वाला लास्ट में देखेंगे कि आखिर ये है क्या। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बने हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस बने हैं एग्जाम में। चलिए, सो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है? 124। ठीक है, नियोलिथिक कल्चर, मेगालिथिक कल्चर, मिसोलिथिक कल्चर, आयरन एज कल्चर। देखिए, नियोलिथिक कल्चर हमें पता है एक्स और सेल्ट जो क्या है, ये नियोलिथिक कल्चर है। मेगालिथिक कल्चर में क्या आते हैं? ट्रॉपिकल एंड सर्कोफागी आते हैं। मेगालिथिक कल्चर सबसे लास्ट का है। मेजोलिथिक कल्चर में ये देखिए, ये क्या है? क्रिसेंट एंड ट्रेपेजॉइड। ये क्या थे? जियोमेट्रिकल एंड नॉन जियोमेट्रिकल टूल्स बिलोंग करते थे ना। जियोमेट्रिकल एंड नॉन जियोमेट्रिकल टूल, नॉन जियोमेट्रिकल टूल। जियोमेट्रिकल एंड नॉन जियोमेट्रिकल टूल हमारा किससे बिलोंग करता था? मेजोलिथिक से। आयरन एज, पेंटेड ग्रेवियर एंड और की पेंटेड ग्रे, ये हो जाएगा आयरन एज। ये का हो गया 3। देखिए, इससे भी आंसर निकल जाएगा। और अगर हमें थोड़ा बिट डाउट है तो उसको मैच कर लेते हैं। मेगालिथिक वाला तो सही है, यानी बी का हमारा क्या होना चाहिए? बी का 1 होना चाहिए। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें बी का 1 है, तो इसके बेसिस पे हम भी करेक्ट ऑप्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से आ गया मैचिंग लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, जो भी मैचिंग में है, पीवाईक्यू में, स्टेटमेंट में, क्रोनोलॉजी में है। देखिए, लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 को हमें मैच करना है। देखिए, सबसे पहले है रिवर, विंड, सी और ग्लेशियल। जो हमें आता है ना, उसको सबसे पहले हम मैच कर देते हैं। वैसे तो मैंने तो सब पढ़ा है, लेकिन फिर भी देखते हैं, एग्जाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम देखते हैं मोरेन डिपॉजिट, ये हमारा ग्लेशियल का है। रिवर डिपॉजिट, रिवर में देख, अब रिवर में थोड़ा सा वो हो रहा है, ठीक है, तो विंड पे चलते हैं। विंड जो है वो होता है लोएस्ट डिपॉजिट या एलुअल डिपॉजिट। सी जो होता है हमारा थैलोस्टेटिक डिपॉजिट होते हैं, जिसमें थिन थैलोस्टेटिक ट्रेस आते हैं। ठीक है, अब आ गया हमारा फेलुअल डिपॉजिट। फेलुअल डिपॉजिट हमारा थी ए का 3, ए का 3 भी पता है, तो ऑप्शंस में हम पहुंच जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन इज 2। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 126। अरेंज द फॉलोइंग लैंडमार्क इन सिफेलोकॉर्डियल ऑर्डर। सिफेलोकॉर्डियल ऑर्डर से हमें इसको अरेंज करना है। एक सेकेंड, हाँ, सिफेलोकॉर्डल ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना है। देखिए, कुछ नहीं करना है, एक बार फिगर बना लेंगे। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा क्या बना रही हूँ। ठीक है, सपोर्ट मतलब समझने के लिए बना लिए, आप लोग कुछ भी बना सकते हो, इतना हमें देखना नहीं है कुछ भी। यहाँ देखिए, एक्टोकैंथियन, ट्राइसियन, सिम्फेसियन, मिजोस्टर्नी, एक्रोपोडियम। ओके, थोड़ा सा और फिगर चाहिए होगा, कोई बात नहीं। लेट्स देखिए, जो आता है पहले उसको कर लेते हैं। यहाँ से जब हम अपनी भाषा में बोले तो बाल झाड़ते हैं तो बीच में मांग निकलती है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं ट्राइकियन। TRICHION, ट्राइकियन होता है। और ये जो होता है जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, इसको बोलते हैं गैबेला। ये भी पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, गैबेला। ये वाले जो रीजन होते हैं इनको बोलते हैं एक्टोकैंथियन। एक्टोकैंथियन रीजन होता है ये वाला हमारा। ठीक है, अब देखिए, ऐसे भी अगर हम जाएं, इतने ऑप्शन से भी हो जाए, ये हमारा LR होता है, LRA होता है, ये हमारा गनेथियम होता है, और ये, ठीक है। अगर इतने ऑप्शन से भी जाएं तो देखिए, अगर हमें ये पता है कि सबसे ऊपर ट्रैचियन आएगा, ठीक है, तो बी ही सबसे पहला ऑप्शन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए, बी के बाद ए है, तो और भी श्योरिटी मिल गई। लेकिन हम ये भी देख लेते हैं कि ये सिम्फाइशियंस कहाँ होता है, मिजोस्टर्नी कहाँ होता है, एक्रोपोडियम कहाँ होता है। ठीक है, देखिए, इसके बाद है मेजोस्टर्नी।
जैसे यहाँ पे आते हैं ना, यहाँ पे शोल्डर्स वाला जो ब्रिज होता है, यहाँ पे हमारी स्टर्नम्स होती हैं। स्टर्नम्स जहाँ पे ज्वाइन होती हैं उसको बोलते हैं मीजोस्टर्नी। मीजोस्टर्नी मैं ऐसे ही बता देती हूँ, आप देख लेना। और ये सिम्पाइसियम जो वाला फिगर होता है ना, जो यहाँ पे हमारी क्या बोलते हैं उसको, यानी हिप बोन वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे होता है सिम्फाइशियम, यहाँ पे होता है सिम्फाइशियंस। और जो लेग होता है हमारा, कहीं तो देखा था मैंने, बहुत सुंदर लेग बनाया हुआ था, ठीक है। तो लेग में ये वाले जो पोर्शंस होती हैं बोन वाले, इनको होते हैं एक्रोपोडियम। एक्रोपोडियम, एक्रो, अब देखिए ये क्रोनोलॉजी होगी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1। सो लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है अरेंज द फोसिल्स रिमेन द टर्म ऑफ अपीयरेंस इन जियोलॉजिकल टाइम इसके अर्लियर टू लेटेस्ट। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, अर्लिएस्ट टू लेटेस्ट इसको अरेंज करना है, पहली बात। और ये जो क्वेश्चन आया है ये ओलिगोसिन फोसिल्स का है, मैंने सिर्फ इसी टॉपिक को छोड़ा है, ओलिगोसिन, ओलिगोसिन फोसिल्स, इसको भी कवर कर दूंगी बहुत जल्दी। ओलिगोसिन फोसिल्स का ये क्वेश्चन है और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम इसको याद रखें। देखिए क्या है, आर्डिपिथिकस, एडापिडी, पैरापिथिकस, पैरापिथिशियडी, प्रोकंशल एंड प्लेसियाडी पी फॉर्म, प्लेसियाडी पी फॉर्म। देखिए सबसे पहले इनमें जो आता है ना, वो आता है हमारा ई। प्लेसिया से याद करते हैं, याद करने के प्लेशियार्ड से याद करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है प्लेशियार्ड। अगर इतना पता है तो यहाँ से सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ये, ठीक है। देखिए आद्रिपिथिकस, आद्रिपिथिकस के बारे में हमने पढ़ा था ना, आद्रिपिथिकस को हम क्या बोलते हैं, आद्री मैन। और ये अर्ली होमिनिड होता है, अर्ली होमिनिड फॉसिल्स में इसको पढ़ा था हमने, अर्ली होमिनिड फॉसिल्स में पढ़ा था। तो ये जब इसमें पढ़ा था तो ये ओलिगोसिन, ओलिगोसिन तो बहुत पीछे हो जाएगा ना, तो ऐसे भी हम इसको ला सकते हैं, लेकिन ए के कई सारे ऑप्शन थे तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं ई यानी प्लेसिया हमारा जो होता है, प्लेशिया यानी प्लेसिडीपी फॉर्म्स जो होता है, प्लेशिया हमारा पहले आएगा। उसके बाद हमें आएगा एडपी, एडपी, एडपी आएगा। एडपी के बाद हमारा आएगा सी का मतलब प्रोकंसल, प्रोकंसल के बाद हमारा आएगा डी, सॉरी फिर आएगा सी, पैरापिथिसिडी, पैरापिथिसिडी के बाद आएगा प्रोकंसल, प्रोकंसल के बाद आएगा ए। मैंने कहा था कि प्रोकंसल को पढ़ लेना, प्रोकंसल को पढ़ लेना। टेल्लेस मंकी होता है ये, टेल्लेस मंकी होता है और ये अफ्रीका में पाया जाता है। एग्जाम में प्रोकंसल को यूरोप से जोड़ के दे देता है, यूरोप से जोड़ के दिया था एक बार, तो ये गलती नहीं करनी है। देखिए एक बार मैं इसकी क्रोनोलॉजी आपको दिखा देती हूँ। कहाँ है हम लोग, हमारा चैनल ये रहा, एंथ्रोनेट जेआरएफ एकेडमी, आप लोग ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। देखिए मैंने अपने ग्रुप में बहुत सारे नोट्स सेंड किए हैं। तो यहाँ पे है प्राइमेट क्लासिफिकेशंस विथ, प्राइमेट क्लासिफिकेशन हम पढ़ा चुके हैं। देखिए ये है फोसिल्स, पैलियोस्टीन फोसिल्स यूनिट 2 पॉइंट, अर्ली होमिनिड, अर्ली होमिनिड फोसिल्स रिकॉर्ड यूनिट, फोसिल्स रिकॉर्ड 2। अच्छा इसमें नहीं है, ओलिगोसिन सेंड तो कर दिए थे वैसे मैंने, एक सेकेंड देखने दीजिए। प्राइमेट क्लासिफिकेशन विथ PYQ दिसंबर, ये हो गया है हमारा। हाँ इसके पहले वाला जो टॉपिक था ना, प्राइमेट क्लासिफिकेशंस के पहले, शायद यही है, पैलिस्टोसिन्स फोसिल्स में कवर किया हुआ है मैंने। देखिए मिल गया, थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पे हमने जो अभी पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे कि उसका जो ओलिगोशिन्स का जो होता है, देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे प्रोशिमियन है, इयोशिन, ये तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, इयोशिन, ओलिगोशिन और मायोशिन, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ भी सकता है। देखिए एपीडियम, एपीडियम के पहले हमारा क्या था, प्लेसीडिया, प्लेसीडिया पी फॉर्म, प्लेसीडिया पी फॉर्म था। यहाँ से जब आता है तो एपीडियम पे आता है, एपीडियम पे, फिर एजिप्टियोपिथिकस पे आता है, एजिप्टियोपिथिकस से आगे मूव किया था। वहाँ पे एजिप्टियोपिथिकस को न देखे उसने क्या किया था, एपीडियम के बाद प्रोकंशल को दे दिया था। प्रोकंशल हमारा मायोसिन का है, प्रोकंशल हमारा मायोसिन में आ जाएगा, प्रोकंशल हमारा मायोसिन आ जाएगा, टेललेस मंकी होता है।
एंड होमिनिड रेडिएशंस। ठीक, देखिए प्रोकंचल्स के बाद हमारा क्या आएगा, ड्रायोपिथिकस, 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 ड्रायोपिथिकस के बाद हमारा सिवापिथिकस, सिवापिथिकस आ जाएगा। तो ये हमारा क्रोनोलॉजी है ओलियोसिन और मायोसिन की। तो इसी के बेसिस पे वो क्वेश्चंस बनाया गया था। ठीक है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे UGC नेट JRF एकेडमी। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी बहुत सारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमने देखा था अदरपिथिकस, यानी सबसे पहले प्लेसिडिया फॉर्म था। प्लेसिडिया फॉर्म के बाद हमारा आता है क्या, एडिपिडीज बी। एडिपिडीज के बाद आता है हमारा पैरापिथी, पैरापिथी के बाद हमारा प्रोकंसल, प्रोकंसल मायोसिन में आ जाते हैं, फिर आद्रपिथिकस हमारा यही सबसे लास्ट में आता है। तो क्रोनोलॉजी बी इज करेक्ट ऑप्शंस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आज इस पेपर को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि फिर नेक्स्ट पेपर हमें स्टार्ट करना है। अरेंज द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन मेड बाय द फॉलोइंग स्कॉलर फ्रॉम लेटेस्ट टू अर्लीस्ट। लेटेस्ट टू अर्लीस्ट, देखिए हमेशा क्या पूछता है, हमेशा पूछता है अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। लेटेस्ट, इस बार क्या, उस बार क्या पूछा था, लेटेस्ट टू अर्लीस्ट। ठीक है, यानी हमें इतना तो पता है कि सरकार का क्लासिफिकेशन सबसे बाद में आया था। कब आया था वैसे, किसी किताब में 1955 है, किसी किताब में 1959 है। 1950 वाला ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो सबसे पहले यही क्लासिफिकेशन आया था। तो अब हम इस दो मतलब सबसे लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है ये, तो इसको तो हम एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे, देखिए। और ये हम रिशले का क्लासिफिकेशन पता है हमें सबसे पहले आया था 1915 में, और इसका डबल कर दोगे तो 1930। मैंने याद करने के लिए किया है, कहीं कहीं इस किताब का जो क्लासिफिकेशन है वो 1934 भी है, मैंने रिसले से इसको डबल कर दिया है 1930। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ए के बाद बी है, सॉरी ई के बाद बी आ जाएगा, तो दोनों में ही बी है। बी के बाद जो आता है हेडन का क्लासिफिकेशन आता है, हेडन का क्लासिफिकेशन आता है, यानी सी भी इससे में सेम है। अब देखिए सी भी सेम है ना, तो बहुत इजी हो गया ऑप्शन को फाइंड आउट करना। पहला ऑप्शन ई, यानी लेटेस्ट क्लासिफिकेशन हमारा सरकार का 1959 का, और अर्लियर क्लासिफिकेशन हमारा रिशले का। तो ये हो गया ई, फिर बी के बाद सी के बाद डी, यानी डी जो क्लासिफिकेशन है गुफेरी, गुफेरी का क्लास, रुगेरी 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 विंसेंजो रुगेरी का क्लासिफिकेशन जो है वो हमारा रिशले के क्लासिफिकेशन के जस्ट पहले आया था। यानी पहले रिशले का आया था, फिर रुगेरी का आया था डी, फिर आया था हमारा सी, फिर गुहा का आया था, गुहा का आया था, फिर हडन का आया था, हडन का आया था, फिर हमारा आया था सरकार का। ये रिशले का 1915 में आया था, ये 1920 के आसपास आया रिशले, हाँ रिशले रडेरी 1920 के आसपास आया था। रिशले का डबल कर देंगे 1930 के आसपास आया था, 4 साल बढ़ा देते हैं 1934। सरकार का 1900, मैंने इसको डबल कर दिया था 1960, ये 1959 में आया था। तो ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 4। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लासिफिकेशन आप डिटेल में पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द ईयर ऑफ पब्लिकेशंस ऑफ द फर्स्ट एडिशंस ऑफ द फॉलोइंग बुक फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। देखिए इसमें सही क्रोनोलॉजी पूछा है, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। ठीक है, फिटस इनटू मैन, पहली किताब है फिटस इनटू मैन, फिजिकल ग्रोथ फ्रॉम कंसेप्शन टू मैच्योरिटी। दूसरी किताब इनकी ग्रोथ एट एडोलेसेंट बाय GM टैनर। फिर है द फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, टैनर एंड प्रीस। वर्ल्ड वाइड वेरिएशंस इन ह्यूमन ग्रोथ, ये एलिवेथ और M टैनर की किताब है, इसको कई बार पूछा है एग्जाम में। ह्यूमन बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन इवोल्यूशंस एंड वेरिएशंस इन ह्यूमन ग्रोथ। ये देखिए, ये किताब को फिर से पूछ सकता है कि ह्यूमन बायोलॉजी किताब से कौन कौन ऑथर रिलेटेड है। देखिए मैंने ऐसे याद किया है, वेनर है, टैनर है, बर्निकॉट है, हैरिसन है। ठीक है, वेनर, टैनर, बर्निकॉट और हैरिसन जो है ह्यूमन बायोलॉजी की किताब से रिलेटेड है। फिर है वर्ल्ड वाइड वेरिएशन किताब इन ह्यूमन ग्रोथ, ये इन्होंने इसमें ग्रोथ टर्म को आइडेंटिफाई किया था और ग्रोथ कर्व को दिया था। वर्ल्ड वाइड वेरिएशन इन ह्यूमन ग्रोथ, ये इनकी 1976 की किताब है। और ये जो है ह्यूमन बायोलॉजी, जिसमें वेनर, टैनर, ग्रोथ और हैरिसन है, ह्यूमन बायोलॉजी, ये इनकी 1968 की किताब है। ठीक है, उसके बाद है फिटस इनटू मैन, इनकी सबसे लास्ट वाली किताब थी ना, टैनर और प्रेस की थी, टैनर और प्रेस की, यानी सबसे लास्ट में व्यक्ति क्या ढूंढता है, पीस ढूंढता है। तो इनकी सबसे लास्ट वाली किताब थी टैनर और पीस की, यानी द फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ।
ठीक है, ये इनकी किताब थी 1989 की, 1989 की। और जो ग्रोथ एट एडोलेसेंट इनकी किताब है टेनर की, ये इनकी थी 1962 की किताब। ठीक है, तो एक चीज़ हमें पता चल गई, ये बी जो थी इनकी फर्स्ट किताब थी, और फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ टेनर और प्रेस की किताब जो थी इनकी लास्ट किताब थी। तो बी पहला होगा और सी लास्ट में होगा। बी करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। ए फिटस इनटू मैन, ये शायद 1962 में, हाँ ये इनकी किताब 1960 मतलब इसके बाद ही लिखी गई थी, 1960 समथिंग की थी। 19 पहले हो गई बी, बी के बाद हो गई ई, फिर ई के बाद हो जाएगा डी 1976, और ये फिर आ जाएगा ए 1986 के आसपास की किताब थी। उसके बाद लास्ट किताब थी इनकी द फिजियोलॉजी ऑफ ग्रोथ टैनर और प्रेस की 1989 की। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये किताब पूछी गई है इसमें से, देखिए वर्ल्ड वाइड वेरिएशन इन ह्यूमन ग्रोथ, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। वर्ल्ड वाइड वेरिएशन इन ह्यूमन ग्रोथ, वर्ल्ड वाइड वेरिएशन इन ह्यूमन ग्रोथ पूछी गई थी पी एलिवेथ और टैनर की किताब। और इसके साथ साथ कौन सी पूछी गई थी, हाँ अभी तक यही पूछी गई है। और ग्रोथ एट एडोलेसेंट भी पूछी गई थी इनकी किताब, सेपरेट क्वेश्चंस पूछा गया था इन दोनों से। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आप देख लेना, क्रोनोलॉजी देख लेना। सबसे पहले इनकी किताब जो आती है ग्रोथ की आती है, ग्रोथ एडोलेसेंट की किताब आती है, सबसे पहली किताब होती है। और सबसे लास्ट में जो किताब ये देते हैं वो इनकी होती है फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। दोनों ही ग्रोथ से शुरू होकर ग्रोथ पे ख़त्म हो जाते हैं, यानी एडोलेसेंट की ग्रोथ से शुरू करती हैं, फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ पे ख़त्म कर देती हैं, इनकी किताबें हैं। ठीक है, उसके बाद क्रोनोलॉजी में 1968 में इनकी ह्यूमन बायोलॉजी थी, जिसमें से वेनर टैनर बर्निकोट हैरिसन्स थे, और उनके 1976 की वर्ल्ड वाइड वेरिएशंस किताब थी इनकी, और 1986 में फिटनेस इनटू मैन थी। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 130। ओके, हाँ तो ये तो देखिए याद होना ही चाहिए भाई, ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं जाने चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशन फ्रॉम अर्ली वन टू मोर रिसेंट 1 ईयर। फर्स्ट वन इज मतलब अर्ली टू रिसेंट में, अर्ली टू रिसेंट में अरेंज करना है, अर्ली टू रिसेंट। सबसे पहले देखिए द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर एक्ट, जिसको FRA एक्ट भी बोलते हैं। ये तो सब बच्चे को पता होगा जो एंथ्रोपोलॉजी का होगा कि ये 2006 का एक्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, पेशा सबको पता होगा, ये 1996 का एक्ट है, किस बच्चे को नहीं पता होगा। SC एंड ST प्रिवेंशन एक्ट, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। SC एंड ST प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटीज एक्ट जो है ये 1989 का एक्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, सही लिखा है ना, हाँ 1989 सही है। देखते हैं द राइट ऑफ फेयर एंड कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट, जिसको RFC TLA डबल आर लार RFCT लार एक्ट बोलते हैं, RFCT लार एक्ट बोलते हैं। ये 2013 में आया था। और उसके बाद है हमारा लैंड एक्विजिशन, ये सबसे पहला एक्ट है 1894 का। देखिए ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था ना हमारा, इसी को अमेंडमेंट कर दिया गया था द राइट ऑफ फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट में। कंपनसेशन फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट में इसको मॉडिफाइड कर दिया गया था। तो 1894 का जो एक्ट है इसको 2013 में ये बीच में वो एक बार और मॉडिफाइड किया गया था, 2013 में इसको मॉडिफाइड किया गया था। तो इतना तो कंफर्म हो गया, डी सबसे लास्ट में आएगा, तो डी सब में ही लास्ट में दे दिया है। लो फिर आएगा हमारा डी के बाद, यानी 2013 के बाद आ जाएगा हमारा 2006 ए आ जाएगा। चलिए इसे तो हम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए। अब हमारे पास बचे हैं 2 ऑप्शंस। अब हमें पता है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट सबसे पहले आया था 1894 में, ब्रिटिश एरा के दौरान ही आया था। तो ई हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब हम इससे करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, इवन दो कि हमें अगर ईयर में कन्फ्यूजन भी है। तो देखिए ई होगा लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, फिर हो जाएगा सी RFC टी लार एक्ट 2013, उसके बाद वी आ जाएगा SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, उसके बाद आ जाएगा हमारा डी। इसमें बी कहाँ है, 1996 हमारा बी आ गया। बी के बाद हाँ सी पहले आ गया,
1989, फिर आ गया बी 1996, फिर आ गया ए हमारा 2006, फिर आ गया डी हमारा फिर आ गया डी हमारा। ठीक है, अर्लीस्ट टू रिसेंट ऐड करना था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 131, अरेंज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द कंडक्टिंग द इंटरव्यू। आप में से जिसने भी रिसर्च किया होगा वो इस क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में अरेंज कर पाएगा। देखिए, पहला है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव एंड कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, ओपिनियन, इंटरेस्ट क्रिएट क्वेश्चंस, एंड डिड यू मिस समथिंग। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरेस्ट से ही पूछा जाता है, तो डी पहला हो जाएगा, और डी पहले इसमें ही है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। फिर पूछा इंटरेस्ट के बाद आते हैं फैक्ट, कितना बच्चा फैक्ट जानता है। फिर आते हैं सी के बाद उसकी ओपिनियन जानते हैं। जब ओपिनियन भी से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, फिर हम कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं तो कंफ्यूज कर जाए, कहीं नहीं होता है तो फिर उसमें मिसिंग टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। देखिए, वी हैव टू अरेंज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू अर्लियर ऑफ पब्लिकेशंस। क्रोनोलॉजी में इसको अरेंज करना है पब्लिकेशंस में। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा, ये एडमिन लेच की किताब है, 1965 की किताब है ये। दूसरा है एग्रोनॉट ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, ये कौन नहीं जानता है वेस्टर्न पैसिफिक, ये 1922 की किताब है, रॉबर्ट ब्राउन की। एलिमेंट ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए आ गया ना ये किताब, ये फर्थ की किताब है, ये 1951 की किताब है, रेमन फर्थ की। न्यूअर सबको पता है, ये 1940 में की किताब है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्रिमिटिव सोसाइटी, इसका आइडिया नहीं है, लेकिन ये रॉबर्ट रेडफील्ड की किताब है। सो ये ईयर और ये ईयर पास है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो हमें याद है। एग्रोनेट ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक सबसे पहली किताब आ रही है 1922, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए, हमने 2 एलिमिनेट कर दिए, और सबसे लास्ट हो जाएगा हमारा ए, तो इसके बेसिस पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। पहले बी हो गया एग्रोनॉट ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक 1922, फिर हो गया डी होगा न्यूअर 1940, 1922 के बाद आता है 1940 के बाद आएगा हमारा सी क्या है, एलिमेंट ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये 1950 के आसपास की किताब है। उसके बाद आता है ई, ये 1954 के आसपास की किताब है। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है हमारा ए, 1965 एडमंड लीच की किताब आती है, द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 133, एक मिनट दीजिएगा। अब इसमें देखिए, अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम स्टेट हैविंग द हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब इन द पॉपुलेशन। 2011 के बेसिस पे हमें बताना है कि हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशंस कहाँ थी। देखिए, पहला है गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोई भी बता देगा। पहला हो जाएगा ई, सो ई से ऑप्शन आ गया, ये पहला हो गया। अब देख भी लेते हैं, पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, उसके बाद है बी उड़ीसा के बाद है डी राजस्थान के बाद है गुजरात। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल सक्सेशन ऑफ द टू टाइप इन द प्रीहिस्टोरिक कल्चर। देखिए, प्रीहिस्टोरिक कल्चर में हमें सक्सेशंस के फॉर्म में बताना है कि सबसे पहले कौन है, फिर कौन है। सबसे पहले हमारा आता है चॉपर, फिर होता है माइक्रोब्यूरियल, फिर होता है बीट्स एंड चेक पीसेस, बोन पॉइंट्स एंड क्लेवर। देखिए, सबसे पहले हमारा आता है ए चॉपर, फिर आता है हमारा माइक्रोब्यूरियल, पहले नंबर पे आता है चॉपर, दूसरे नंबर पे आता है हमारा बोन पॉइंट, तीसरे नंबर पे आता है हमारा सी बिट्स एंड चेक, उसके बाद पे आता है हमारा ई क्लीवर्स आता है हमारा 4th नंबर पे, और माइक्रोब्यूरियल आते हैं हमारे 5th नंबर पे। हाँ, सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। ब्यूरियल वैसे भी लास्ट में ही आएंगे ना। सो क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 135 बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी से इजी क्या ही देंगे। क्रोनोलॉजिकल एपोक फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, एपोक के बारे में बताना है हमें, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट।
देखिए एंथ्रोपोसीन, इयोसीन, होलोसीन, प्लेगोसीन, पैलियोस्टीसीन। मैंने बताया था कैसे याद करना है। ओ एम, ओम तो सबको पता होता है। उसके बाद आता है पी, पैलियोसीन, फिर आता है पेलिस्टोसिन, फिर आता है होलोसीन और एंथ्रोपोसीन। ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। इसके पैसे होता है प्लायोसिन, इयोसिन, प्लायोसिन, इयोसिन। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे लास्ट में हमारा हो जाएगा एंथ्रोपोसीन, ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये लेटेस्ट, अर्लियर टू लेटेस्ट। तो सबसे पहले हमारा आया इयोसिन। देखिए इयोसिन, ये रहा इयोसिन 1 नंबर पे आ गया। फिर देखिए फिर आया डी हमारा ओलिगोसिन, ओलिगोसिन हमारा 2 नंबर पे आ गया। फिर हमारा आया पेलिस्टोसिन, क्योंकि मायोसिन नहीं है तो यहाँ पे एक होता है ये पलियोसिन होता है, और ये होलियोसिन में पेलिस्टोसिन आता है, पेलिस्टोसिन। तो ये आ गया हमारा 3 नंबर पे। फिर आ गया हमारा ई के बाद हो गया सी, होलोसिन आ गया। देखिए होलोसिन ये रहा 4 नंबर पे। फिर हमारा एंथ्रोपोसिन 5 नंबर पे। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 136। गिनती के 2-4 क्वेश्चंस और हैं। देखिए लेबर असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये। एविडेंस ऑफ द अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एलिमेंट टेकन प्लेस इन मेसोपोटामिया रीजन इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया को क्रिशेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। फ्लोरा एंड फौना टुगेदर देम प्रिवेलिंग ऑफ द प्लेशियो इकोलॉजिकल कंडीशंस ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज होलोसिन पीरियड वेयर congestional and early farming as evidence of Jericho, Jarmo, Cataluyuk archaeological site both are correct options। ठीक है, करेक्ट ऑप्शंस ये पढ़ लेना, जेरिको, जार्मो एंड कैटलुइक वीडियो में चलिए कवर कर दूंगी। करेक्ट ऑप्शन इज 1। क्वेश्चन नंबर 137। जेएम टैनर, देखिए फिर से किताब में पूछ दिया ना। जेएम टैनर आइडेंटिफाई इट्स नोन एज सेकुलर ट्रेंड in growth of the children in the adolescent in 19th-20th century. Correct. GM Tanner is the cover the trend the increase of the height at all ages, particularly in the adolescence. Their earlier sexual maturation in Western Europe in USA that began in early in 1800 and continued to mid 20th century. सही है, देखिए ए और बी करेक्ट ऑप्शन इज ए। जेएम टैनर ने स्टडी की थी ग्रोथ एंड सेकुलर ट्रेंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है 138। देखिए कह रहा है असर्शंस एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है। Symbolic coding food has been elaborated a high degree of, especially in the second half of the 20th century when development of the global food culture and the system of the food retail and the marketing accelerations. Yes, for nutrition anthropologists understand the deep social embeddedness as a symbolic goods help determine how nutritional health is produced in related to modern system. Here the symbolic value is important issue for the food management, the marketing. Both are correct and correct option is A. Let's see the next question 139 देखिए कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इंक्लूड द ट्रांजिशन फ्लो ऑफ गुड्स पीपल आइडिया एंड द प्रैक्टिसेस। सही बात है। देयर हैज़ बीन द सिग्निफिकेंट इंक्रीज द इंटरनेशनल माइग्रेंट एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द कल्चरल होमोजेनाइजेशन हैज बी पॉइंटेड। सही बात है। फिर है एट द वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन फोर्स there has been assertion of the local culture in the form of the various movement. Identity assertions is a very much there, and the globalizations the process has been pointed restriction by the work permit in the way of the international migrants. सही है, both options are correct. Let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन भी assertion का है, रीजन assertion रीजन है assertion है देयर इज एसोसिएशन बिटवीन ब्लड ग्रुप टाइप ऑफ द जेनेटिक डिजीज। सही बात है। दूसरा है एसोसिएशन बिटवीन ब्लड ग्रुप इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक डिजीज इज द एग्जांपल ऑफ लिंकेज। ये कब से लिंकेज का एग्जांपल होने लगा? लिंकेज तो जीन से होता है, ब्लड ग्रुप का क्या रिलेशन इसमें? सो 1 इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। करेक्ट ऑप्शन इज 3। इसी के साथ हमारा ये तो कंपेरेटिव पैसेज है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक इन द सेंस 2023 दिसंबर का पेपर हमारा कंप्लीट होता है। और अब हम इससे जो प्रीवियस पेपर होंगे 2022 के उसकी एनालिसिस करेंगे, और ये सारे पेपर इससे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे 2025 के एग्ज़ाम में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।